Today I am going to teach you, I am going to share a very, very important topic. Why you should join the house of prayer. हाउस ऑफ प्रेयर में आपको क्यों जुड़ना है? Huh? As a pastor of house of prayer, as any other pastor, I want people to join the house of prayer. और मैं चाहता हूँ ये हाउस ऑफ प्रेयर के पासवान होने के नाते कि सारे लोग ये हाउस ऑफ प्रेयर में जुड़ जाए. I see that I give a good quality word every Sunday morning. और मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि हर रविवार को एक बहुत ही बेहतरीन संदेश सभी को बांटा जाए. I see that I empower every one of you. और मैं ये भी सुनिश्चित करता हूँ कि सबको सशक्त किया जाए. I see that I keep myself humble, not as a superman in front of you. मैं ये भी सुनिश्चित करता हूँ कि मैं आपके सामने नम्र बना रहूँ, ना कि कोई सुपरमैन. You know, I want everybody, the whole city to listen to the house of prayer. I feel like और that. पासवान होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि सारा शहर हाउस ऑफ प्रेयर के संदेशों को And सुने. God has told me one day that I will make house of prayer a voice in the city. और परमेश्वर ने मुझसे ये बात कही है कि हाउस ऑफ प्रेयर को इस शहर के एक बुलंद आवाज बनाए. So definitely we will talk to the city, the leaders of the city, the leaders of this तो nation. निश्चित तौर पर हम इस शहर के जो नेता है, अगुए हैं, उनसे हम बात करेंगे. So prepare yourself to become a leader of this nation, to influence the decision makers of this nation. अपने आप को आप तैयार करो ताकि आप इस शहर के अगुओं को, नेताओं के साथ आप बात कर सके, उनको मार्गदर्शन दे सके. Okay, so before saying everyone should join the house of prayer, let me just see what is the house of prayer. Who is house of prayer? And what is this institution called house of prayer? ये सब होने से पहले सबको जुड़ना होगा ताकि वो जान पाए कि ये जो संस्था है ये क्या है, ये क्या है, हाउस ऑफ प्रेयर माने क्या. Every Sunday morning we come and meet here and I say house of prayer, house of prayer. What is this? और हर रविवार सुबह हम यहाँ बात करते हैं हाउस ऑफ प्रेयर, हाउस ऑफ प्रेयर. ये क्या है चीज? First of all, house of prayer is not a church but a house of prayer for all people. और पहले तो ये बात समझना है कि ये कोई कलीसिया नहीं है, बल्कि ये एक घर है सारे लोगों के लिए जो वहां आ सके. Anyone is welcome to this house of prayer. किसी का भी स्वागत है इस हाउस ऑफ प्रेयर में. Whatever religion you come from, you are welcome here. चाहे आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो, आपका स्वागत है, आप यहाँ पर आ सकते हो. Whatever class you belong to, you are welcome here. चाहे आप किसी भी वर्ग से क्यों ना हो, आप यहाँ पर आ सकते हो. Because house of prayer is an extension of heaven on earth. क्योंकि हाउस ऑफ प्रेयर जो है ये स्वर्ग का ही एक भाग है जो इस पृथ्वी पर दिख रहा So है. it is actually the kingdom of God on this earth. तो सचमुच ये परमेश्वर का राज्य है इस पृथ्वी पर. So it is connected to God, it is connected to angels, it is connected to heaven. तो ये परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, स्वर्गदूतों के साथ जुड़ा हुआ है, स्वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है. This is not an ordinary place. ये कोई साधारण सा जगह नहीं This है. is basically a heaven on earth. ये सचमुच पृथ्वी पर जो स्वर्ग है. It is not, that physical heaven. No, it is a spiritual heaven on earth. और जो हम देख पाते हैं, सुन और छू सकते हैं, वैसे हम स्वर्ग के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन आत्मिक तौर पर यह स्वर्ग है. Though house of prayer functions on this earth, it is under the leadership of God. और हाउस ऑफ प्रेयर जो है वो इस पृथ्वी पर चल जरूर रहा है, लेकिन ये परमेश्वर अगुवाई दे रहा है. Every Sunday, King Jesus meets you in this place. हर रविवार को प्रभु यीशु आपसे मुलाकात करता है यहाँ पर. He meets his disciples. वो अपने शिष्यों से मुलाकात His करता children. है, अपने संतानों से मुलाकात He करता है. meets every one of you in this place. आप में से हर एक से मुलाकात करता है वो यहाँ पर. Even if you are watching us through internet, still he will meet you. अगर आप ऑनलाइन हमें इंटरनेट के द्वारा हम हमारी बातों को सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आपसे मुलाकात यीशु जरूर करता है. So this is house of prayer. तो यही हाउस ऑफ And we प्रेयर should है. also know what is the condition of this earth we are living in. और हमें ये भी समझना है कि जिस पृथ्वी में हम जी रहे हैं उसकी अवस्था कैसी है. We should know what is the outside this house of prayer. What is there? तो हमें ये भी जानना है कि इस हाउस ऑफ प्रेयर के बाहर क्या है, कैसी परिस्थितियां हैं. Let us turn to one word, John chapter 16 verse 33. यूहन्ना 16वां अध्याय 33वां वचन. I would like to share from another version called New Living Translation. न्यू लिविंग ट्रांसलेशन जो अनुवाद है उनमें से पासवान पढ़े. I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. This earth is full of trials and sorrows.
ये पृथ्वी में ऐसी दुख और ऐसी परिस्थितियों, मुश्किल परिस्थितियों से भरा हुआ है। Please understand, earth is not a beautiful place as you are thinking. और जैसे आप सोच रहे हो ऐसे पृथ्वी कोई बहुत बड़ा सुंदर जगह नहीं है। People who are rich are not living beautiful life as you are watching them on the internet. जैसे आप इंटरनेट में देख रहे हो वैसे ये धनी लोग बहुत खुश नहीं जी रहे हैं। No, नहीं। people are full of trials and sorrows. लोगों के जीवन में ऐसी बहुत सी मुश्किल परिस्थितियां हैं, बहुत This दुख से is भरा the हुआ है। condition of this earth. और यही इस पृथ्वी की अवस्था है। This is the condition of your neighbors. आपकी पड़ोसी की अवस्था यही है। This is the condition of the city. इस शहर की अवस्था यही है। It is full of trials and sorrows. और मुश्किल परिस्थितियां और दुख से भरा हुआ है। And Jesus Christ is saying, और यीशु मसीह कह रहे हैं, I have overcome this world. मैंने इस संसार पर जीत पा लिया है। So if you have to overcome trial or sorrow, you need to align with Jesus Christ. तो अगर आपको ये मुश्किल परिस्थितियों पे और दुख पर विजयी होना है तो आपको यीशु के साथ खड़े होना होगा। Why are we running this house of prayer? क्यों हम इस हाउस ऑफ प्रेयर को चला रहे For हैं? the benefit of the city, शहर के फायदे के लिए, benefit of you. आपके फायदे के लिए, So that when you align with house of prayer, you align with God. ताकि जब आप हाउस ऑफ प्रेयर के साथ खड़े रहे, आप परमेश्वर के साथ खड़े रहे। When you align with house of prayer, you align with Jesus. आप जब हाउस ऑफ प्रेयर के साथ खड़े रहते हो, आप यीशु के साथ खड़े रहते He हो। said, I have overcome. और उसी ने कहा कि मैंने विजय पा लिया है। Are you can overcome. आप भी विजय पा सकते Tell your हो। neighbors you can अपने overcome. पड़ोसी से कहो तुम भी जीत सकते हो। With Jesus you can overcome. यीशु के साथ तुम जीत सकते Please हो। understand this. इस बात को समझे। With Jesus you can overcome. यीशु के साथ आप जीत सकते हो। When my son is with me, जब मेरा बेटा मेरे साथ होता he है, overcomes every puddle in the road. हर एक जो वहां पर पानी जमा होता है रास्ते पे, वहां पे उस सब पे वो विजय होता I है। just lift him and put him there. मैं उसे उठाकर अगले स्थान पर रख लेता हूँ। Life is not complicated. और जीवन इतना मुश्किल नहीं When है you are with your father, जब आप अपने पिता के साथ हो। life becomes easy when you are with your father. अपने पिता के साथ आपका जीवन आसान हो जाता You are है। with your father God. आप अपने पिता परमेश्वर के You are साथ हो। with Jesus Christ. आप यीशु मसीह के साथ हो। He knows where to pick you and put you on in front of you. वो जानता है कि कहाँ पे आपको उठा लेना है और अगले स्थान पर रख देना है। Why are you sitting and wondering who will help me? आप क्यों ये बैठकर सोच रहे हो कि कौन मेरी मदद करेगा? You join house of prayer आप हाउस ऑफ प्रेयर के साथ जुड़ and जाए get connected to और Jesus यीशु के साथ संपर्क बनाए and see your life change. और देखो आपका जीवन बदल जाए। Unless you take good decisions, who will help you? जब तक आप अच्छे निर्णय नहीं लेते हो तो कौन आपकी मदद लेकर Who will teach you? कौन आपको सिखाएगा? Every Sunday morning I loudly teach you. और हर रविवार सुबह मैं यहाँ पर आपको सिखाता हूँ। Who will teach you? कौन आपको सिखाएगा? Who will prepare the whole week and teach you? और कौन पूरे सप्ताह तैयारी करेगा और आपको सिखाएगा? Things of success. और ये सारे कायदे कानून जो उन्नति This के is हैं the standard of this earth we are living in. और ये परिस्थितियां हैं इस पृथ्वी की जो हाँ जहाँ पर हम जी रहे Let हैं। us turn to another verse. अगला एक वचन देखेंगे। Matthew chapter 11 verse 28, 29 and 30. मत्ती 11 उसका 28 से लेकर 30 तक। Again in NLT. Jesus said, "Come to me, all you who are weary and carry heavy burdens. I will give you rest. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, my burden is light. My yoke is easy to bear, and the burden I give you is light." मेरा जुआ जो है ये आसान है तुम्हें सहने के लिए और जो बोझ मैं तुम्हें दूंगा वो आसान पड़ेगा। How many of you are tired of life? आप में से कितने लोग अपने जिंदगी से अपने जीवन से थक चुके हो? My friend, you are watching me. How many of you are tired? आप ऑनलाइन हमें देख रहे हो, आप में से कितने लोग अपने जिंदगी से थक चुके हो? Are you weary? क्या आपको ऐसी थकावट महसूस हो Are रही है? you carrying heavy load? क्या बड़ा सा एक बोझा, भारी बोझा आप लेकर चल रहे हो? There is only one place you can have rest. एक ही स्थान है जहां पर आपको विश्राम मिलेगा। Rest. विश्राम। Everybody say rest. आप सब कहे विश्राम। Rest. We long for it. हम सब इसको पाना चाहते हैं। How many we always hear somebody say, "I need rest. और हम कहीं ना कहीं हमेशा ये सुनते रहते हैं, लोग कहते हैं कि मुझे विश्राम की जरूरत है, I आराम need की जरूरत little है, rest." मुझे थोड़े से आराम की जरूरत है। I tell you, there is one place for rest. मैं आपसे कहता हूँ कि एक जगह है विश्राम के लिए।
Jesus Christ said, "You come to me, I will give you rest." यीशु ने कहा कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। If you stand outside, how he will give you rest? अगर आप बाहर खड़े रहोगे तो वो कैसे आपको विश्राम दे You पाएगा? are watching everything, how he will give you rest? आप सब चीजों को ऐसे दूर से देख रहे हो, वो कैसे आपको विश्राम दे You पाएगा? are wondering what's happening, how he will give you अगर आप rest? यही सोचते रहो कि क्या हो रहा है यहाँ पर, तो कैसे वो आपको विश्राम You दे need to पाएगा? come to Jesus. आपको यीशु के पास आना That है। is what we are sharing every Sunday morning in the house of prayer, हर रविवार सुबह को हाउस ऑफ प्रेयर में हम यही चीजें बांट रहे हैं, so that your life will be a life of rest. ताकि आपका जीवन जो है वो विश्राम से भरा हुआ एक जीवन हो। One day I read a book. nahi, I didn't read the book. I didn't like the book because that book said how to retire at 40. और एक किताब मैंने देखा था जिस पर लिखा था कैसे आप 40 साल से पहले आप अपने काम से विराम ले सकते हो। I didn't want to see who the author is मुझे because I देखना- didn't like it. क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आया वो किताब, इसे मुझे जानना भी नहीं था उसमें क्या लिखा है या किसने लिखा है। He's actually teaching you how to die at 40. वो सचमुच आपको सिखा रहा है कैसे 40 साल की उम्र में आप मर जाओ। There is no retirement. कोई ऐसे आपने काम से विराम नहीं ले सकते। But Jesus is saying you can have rest लेकिन यीशु कह रहे हैं कि आप विश्राम कर सकते हो throughout your life. अपने सारी जीवन। No retirement, कोई वहां पे काम से विराम but नहीं है, rest लेकिन विश्राम जरूर in है। your work, आपने काम में, rest in your business, आपके व्यापार से आप Rest विश्राम ले every day. सकते हो। आपने हर दिन आप Rest in विश्राम the कर सकते morning. हो। सुबह को विश्राम, rest in the afternoon, दोपहर को विश्राम, rest विश्राम all the time. But you सारे work समय। so much. लेकिन आप इतना You अधिक काम accomplish करोगे, so much. आप इतना अधिक हासिल कर सकते हो, Yes, there is a lot of things to be done. और बहुत सारे कामों को हमें पूरा करना है। But this rest is not in the physical rest. This is in our soul. और ये जो विश्राम है ये शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि आपके प्राण में है। I'll tell you something. You know where we are carrying the burdens? और आप जानते हो सचमुच हम कहां पर ये सारी बोझ लेकर चल रहे हैं? How many of you carry burden to your office? आप में से कितने लोग ऐसे बोझ लेके अपने दफ्तर जाते हो? Huh? We don't carry anything. Our car carries. हम कुछ लेकर नहीं जाते, हम जिस गाड़ी में जाते हैं वो हमें Our ले bike जाता है। carries. कार हो या बाइक हो वो ले चलता है। Only the dabba wala carry the load on the head. वो जो डब्बा वाले हैं वो अपना सारा बोझ सिर पर उठा के चलते हैं। Okay? Nobody carries load on the head. कोई भी अपने सिर पर अपना कोई बोझ उठा के नहीं ले चल रहा। Our head is not meant for carrying load. हमारा सिर को ऐसे बोझ उठा के चलने के लिए नहीं बनाया गया है। Touch your head. अपने सिर को छुए। Our head is very important. It is not given to us to carry load. ये जो सिर है ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, इसे बोझ उठाने के लिए नहीं बनाया गया We है। should not hurt our head with the loads. अपने सिर को ऐसे बोझ उठाकर हमें चोट नहीं We पहुंचाना are है। actually carrying the burden in our soul. हम सचमुच ये जो बोझ है अपने प्राण में लिए चलते हैं। We all carry weight in our हम soul. सब इतने भारी वजन अपने प्राण में लेकर चलते हैं। That's what Jesus said, I will give you rest. और in your यही soul. बात यीशु ने कही है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Say rest. आप कहे विश्राम। So the life with Christ is a restful life. यीशु के साथ जो जीवन है ये विश्राम से भरा हुआ एक जीवन है। Okay? Let's read verse 30. 30वां वचन देखे पढ़े। Again, for my yoke is easy to bear, the burden I give you is light. So there is a burden. It's not that we don't work. और वहां पर एक जुआ जरूर है, वो एक बोझ जरूर है। ऐसा नहीं है कि हम काम ही नहीं कर रहे, We are not getting retired, हम वहां पे काम से विराम नहीं ले रहे but हैं, we are not tired. लेकिन हम थके नहीं हैं। We are not getting, weary. और हम वहां पर थकावट में से झुक नहीं रहे हैं, We are at rest all the time. हम विश्राम में हैं हमेशा। Okay, we teach you how you can carry light load. The load we are carrying is actually light. और जो बोझ आप सचमुच लेकर चल रहे हो वो हल्का बोझ है। So my friend, you should know, life is not to suffer. आपको ये जानना जरूरी है कि आपका जिंदगी जो है वो ऐसे पीड़ा सहने के लिए If नहीं है। you are suffering out there, अगर आप पीड़ा सह रहे हो वहां पर, house of prayer is the right place for you. हाउस ऑफ प्रेयर आपके लिए सही स्थान है। Because here we teach how you can live a restful life and a life without burden. क्योंकि यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि कैसे विश्राम से भरा हुआ एक जीवन आप बिता सके, कैसे आपका सारा जीवन So there are विश्राम three- से भरा हुआ हो। There are 3 words with Jesus Christ. यीशु के साथ 3 ऐसे शब्द है, Rest, विश्राम, easy आसान and light. और वो हल्का। Chalo, let's repeat. Rest, विश्राम, easy आसान सा and light. और हल्का। Rest, विश्राम,
easy आसान and light. और हल्का। So if you are any place, you will have rest, easy and light. और कहीं स्थान पे भी क्यों ना आप कहीं पर भी क्यों ना हो, आपके जीवन में ये तीन बातें रहेगी। आप विश्राम होगा, आसान होगा और हल्का होगा। Please understand, इस बात को today I समझिए। will teach you, if you follow Jesus, if you carry his yoke you carry, it is light. अगर आप यीशु के पीछे चलते हो और उसके जुए को उठा के चलते हो तो वो एकदम आसान है, हल्का है। You carry, then it is heavy. आप इस बोझ को उठा के चलो तो Don't भारी carry लगेगा। things which Jesus has not given you. ऐसे बोझ को मत उठाओ जिसे यीशु ने आपको नहीं समाया है। Have you seen people who say that my job is very tough, my life is very difficult? क्या आपने ऐसे लोगों को सुना है कि मेरी नौकरी जो है बहुत मुश्किल है, मेरे जीवन जो है बहुत ही मुश्किल है? I'll tell you, you are not in touch with Jesus. मैं आपसे कहता हूं कि आप यीशु के संपर्क में नहीं हो। If you are in touch with Jesus, then your life is easy. क्योंकि अगर आप यीशु के संपर्क में होंगे तो आपके जीवन आसान हो जाएगा। Because Jesus will give you rest. क्योंकि यीशु आपको विश्राम देगा। And I don't say there will be no work, there will be lot of work. ऐसा नहीं कहता कि कोई काम नहीं होगा, बहुत अधिक काम होगा। You will not have time to do things, कुछ सारी बातों को पूरा करने के लिए आपके पास समय तक नहीं होगा, but you are always at rest. लेकिन आप हमेशा विश्राम में रहोगे। Okay? ठीक है। Next, let's turn to Revelations 21:4. प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 4 He will wipe every tear from their eyes. और वो सारों के आंखों से उनके आंसुओं को पोंछ देगा। Let's say he will wipe every tear. हम सब कहे कि वो सबके आंसू पोंछ देगा। This is God. He will यही wipe परमेश्वर the है। tears from your eyes. वो आपके आंखों से आंसुओं को पोंछ देता You है। know, many people are crying. बहुत से लोग रो रहे हैं, Many are crying. बहुत से लोग रो रहे हैं, Many women are crying. बहुत सी स्त्रियां रो रही हैं। You know, many men are crying. क्या आप जानते हो बहुत पुरुष भी रो रहे हैं। Women cry very easily. स्त्रियां आमतौर पर आसानी से रो पड़ते हैं। Men don't cry that easily. पुरुष जो है वो आसानी से नहीं रोते, That they are crying in silence. लेकिन वो एकदम चुपचाप वो They रो are रहे crying हैं। when nobody is seeing. कोई देख नहीं रहा है तब वो रो रहे हैं। Are you crying? क्या आप रो रहे हो? House of prayer is the place. हाउस ऑफ प्रेयर वो स्थान है, Because there is only one person who will wipe your tears. क्योंकि एक ही व्यक्ति है जो आपके आंसुओं को पोंछेगा, He is Jesus. वो यीशु है। Nobody else will wipe your tears. कोई और आपके आंसुओं को नहीं पोंछेगा। Nobody really cares for you. किसी को कोई परवाह ही नहीं आपकी, Nobody really cares for you. किसी को कोई परवाह ही नहीं आपके साथ क्या हो रहा Nobody है, really bothers you. किसी को कोई परवाह ही नहीं। There is only one person. केवल एक ही व्यक्ति है, Only Jesus. केवल यीशु, Only Jesus. केवल यीशु। Repeat after me. आप मेरे Only पीछे कहे Jesus. केवल यीशु, Only Jesus. केवल यीशु। He will wipe your tears. वो आपके आंसुओं को पोंछ See देगा। what he has said. देखो क्या लिखा है, I will wipe your tears. मैं आपके आंखों से When आंसुओं को he पोंछ दूंगा। said, when he said, I will wipe your tears, he will wipe your tears. जब यीशु ने ये बातें कही है कि वो आंसुओं को पोंछेगा तो वो जरूर करेगा। Why you should cry? क्यों आपको रोना है? When there is someone who can wipe your tears. जब कोई यहाँ पर मौजूद है जो आपके आंसुओं को पोंछेगा। Why should you sit alone and wonder who will help me? फिर आप अकेले बैठ के क्यों ये सोचे कि कौन मेरी सहायता You need करेगा? to join the house of आपको prayer हाउस ऑफ प्रेयर में जुड़ना है so that you get connected to Jesus, ताकि आप यीशु के संपर्क में so आए, that he can wipe your tears. ताकि वो आपके आंसुओं को पोंछे, He can change your life. वो आपके जीवन को बदले। It will be tears of joy after some वो years. आनंद के आंसू होंगे उसके बाद। That is why you need to join house of prayer. और इसी कारण आपको हाउस ऑफ प्रेयर के साथ जुड़ना है। Let's go to the next point. अगली बात हम देखेंगे, Anyone कोई भी व्यक्ति can excel in house of prayer. हाउस ऑफ प्रेयर में उन्नति पा सकता है। Anyone. कोई भी व्यक्ति, There is no qualification. और उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। Because you know what we believe? क्योंकि आप जानते हो हम क्या मानते हैं? We believe you are a masterpiece. हम यही मानते हैं कि आपको उत्तमता से बनाया गया है। Now, when you go outside, जब आप बाहर जाते हो, people will make fun of you based on your body parts. लोग शायद आपके शरीर के अंगों को देख के आपका मजाक उड़ाए। How you look, आप किस प्रकार दिख रहे हो, how you present yourself. आप अपने आप को कैसे लोगों को दिखा रहे हो। People give you nicknames. लोग आपको ऐसे आडनाम से बुलाएंगे, But we believe in the Bible. लेकिन हम बाइबल पर विश्वास And करते let me read to you what the Bible says about you. हैं। मैं बाइबल से पढ़ूंगा कि बाइबल आपके बारे में क्या कहता है। You understand? Outside, they will say, you don't look beautiful, you don't look handsome, you don't look good, you don't look educated, you don't look like smart. और बाहर शायद आपको लोग कहेंगे कि तुम सुंदर नहीं दिख रहे, तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, तुम पढ़े लिखे नहीं दिख रहे हो, तुम बुद्धिमान नहीं लग रहे हो। Some people even will say that you are not
you're high class, you are a low class. लोग शायद ये भी कहेंगे कि तुम उच्च वर्ग के नहीं हो, तुम निच वर्ग के हो. Yes. That is what happens in the world. दुनिया में यही हो रहा है. Then you live like a useless person in the world. फिर आप दुनिया में एक बेकार का व्यक्ति बनकर जीते हो. Okay? Then your lifestyle is useless lifestyle. फिर आपकी जीवन शैली जो है वो बेकार की जीवन शैली बनती Then है. you die like a useless man. फिर आपकी मृत्यु भी ऐसे बेकार से व्यक्ति बनकर You ही होती है. develop habits of uselessness. और फिर आप बेकार से एक व्यक्ति की आदतों को अपने जीवन में लाते हो. How many men they come and drink there? कितने पुरुष वहां पर आते हैं और बैठे रहते हैं और दारू पीते हैं. They get drunk there. वो वहां पर पूरे दारू से भर जाते हैं. And they just, you see them. आप उनको देखेंगे. You see them getting dissipated in that place. और वही स्थान पे वो बेकार होते हुए आप देख पाओगे. Why are they doing it? क्यों ऐसे वो कर रहे हैं? What makes them to do that to them? उन्हें क्या प्रेरणा मिलती है कि वो ऐसे करे? Why are they hurting them? क्यों अपने आप को चोट पहुंचा Why रहे are हैं? they injuring them? क्यों अपने आप को चोट पहुंचा You रहे know हैं? why are they doing it? क्या आप जानते हो क्यों कर रहे They're हैं? already injured. क्योंकि वो पहले से चोट They खाए are हुए हैं. already hurt. पहले से उन्हें दुख पहुंच चुका They है. are already finished. वो पहले से ही खत्म हो चुके They are हैं. dead men. वो मरे हुए लोग हैं. They are only trying to die by drinking that वो alcohol. केवल और मृत्यु पाने की कोशिश कर रहे हैं वो दारू पीकर. They have no ambition. उनके जीवन में कोई प्रेरणा नहीं है. They have no vision. कोई दर्शन नहीं है. They have no strength. कोई ताकत नहीं है. They have no money. कोई पैसा नहीं They है. have nothing. They have no concern about anything. कुछ भी नहीं है. उनके पास कोई चिंता नहीं है किसी विषय में. They want to die. उनको केवल मरना है. They just want to drink that alcohol. वो केवल दारू पीना चाहते हैं. Forget the world. दुनिया को भूलना चाहते The हैं. world is so dirty. वो दुनिया इतना खराब है. The world has hurt them so much दुनिया ने इतना अधिक उन्हें चोट पहुंचाया so है. that they just want to pass away from this world. वो केवल इस दुनिया से निकल जाना चाहते हैं. What is there if I vomit and I die? Let me die. I fall in the gutter. I don't care. All my dress is full of gutter water. I don't care. I just want to die. I just want to forget what's happening around. और क्या फर्क पड़ता है कि मैं वहां पर उल्टी करूं या गटर में गिर जाऊं या कुछ मेरे वस्त्र खराब हो जाए. मुझे केवल मरना है. Today the world has driven them like that. आज दुनिया ने उन्हें स्थान पर पहुंचाया है. There is only one person who can bring hope in them. एक ही व्यक्ति उनके जीवन में आशा दे सकता है. Say, who is that? आप पूछे Who कौन is है that? वो? कौन है वो? Jesus Christ. यीशु Only मसीह. Jesus. केवल यीशु मसीह. He will heal you. वही आपको He चंगाई will देगा take in his arms. और आपको अपने He हाथों will में hug ले you. लेगा. वो आपको गले He will लगाएगा. wash you. वो आपको धोएगा He will make you a man again. और फिर से एक नया He व्यक्ति will give you बनाएगा. back what you are made for. और उस स्थान पर आपको बिठाएगा जिसके लिए आपको बनाया गया था. We believe that. हम विश्वास We करते believe हैं. that. हम वो विश्वास We करते हैं. value this. हम इसका कीमत We जानते exhibit हैं. this. और इसी We को talk this. और यही बातें We करते हैं. pronounce this. We demonstrate this. इसी की घोषणा करते हैं. इसी को दर्शाते हैं. Let's turn to the Bible where it talks about each हम and बाइबल every की तरफ one. देखेंगे जहां पर ये बातें लिखी है. Huh? Let's turn to Psalms 139 verse 13. This is how God has made you. This is a word about every one of you. Tell your neighbor. और This इसी is about प्रकार you. से परमेश्वर ने आपको बनाया है. आप अपने पड़ोसी से कहो इसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको बनाया है. This word is for you. ये वचन आपके लिए है. Don't believe the word. दुनिया की बातों को मत Believe the मानो. word. वचन की बातों को मानो. This is the truth about you. यही सच्चाई है आपके विषय में. When you are in your mother's womb. आप जब आपके माता के गर्भ में थे. This परमेश्वर is कह रहा है. God. यही परमेश्वर कह रहा God है. never created anybody down. परमेश्वर ने किसी को नीच वर्ग का नहीं बनाया है. God doesn't humiliate anybody. परमेश्वर किसी की भी निंदा नहीं करते हैं. God, this is how God created you in your और mother's इसी womb. प्रकार से परमेश्वर ने आपको आपके माँ के गर्भ में सृष्टि की. Today the world doesn't know this. आज दुनिया ये बातें नहीं They जानती. have another wrong doctrine. और दूसरा गलत एक सिद्धांत वो है यहाँ पर. This चल is रहा the है. doctrine which is God's doctrine. यही वो सिद्धांत है जो परमेश्वर का सिद्धांत है. God formed your inward part. परमेश्वर ने आपके अंदरूनी अंगों को बनाया है. When you come out of your mother's womb, आपके माँ के गर्भ से जब आप it बाहर is God निकलते who हो, brings you out of your mother's womb. परमेश्वर आपको बाहर निकाल रहा है. Huh? The whole world should be expressing joy the moment they see you. सारे दुनिया को आनंद बनाना है जब वो आपको देखते हो. He covered you in your mother's womb. आपके माँ के गर्भ में ही उसने परमेश्वर ने आपको ढाक He दिया है. has made you fearfully and wonderfully. और बहुत ही भय के साथ और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आपकी रचना की है. What is fearfully? और ये बहुत भय के साथ What अर्थ is क्या है? wonderfully? और ऐसे अद्भुत तरीके का अर्थ क्या है? I have seen artists painting. और मैंने देखा है कई सारे आर्टिस्ट जो है वो ऐसी पेंटिंग कर रहे हैं. Okay?
Then they paint very carefully. और जब वो ऐसे अपने अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत संभाल कर वो करते हैं। I have seen sculptors, you know, making the figures with the chisel. और मैंने देखा है जो मूर्ति की रचना करने वाले लोग हैं, वो कितने संभाल कर वो मूर्ति की रचना कर रहे हैं। They do it so fearfully. वो इतना भय के साथ संभाल कर रहे हैं। Because if the chip is one thing stronger, it will chip something. The whole thing has to be discarded. You can never rectify that. क्योंकि अगर वहां एक भी गलती हो गई तो वो मूर्ति बनाने वाले की पूरी मेहनत पानी में जाएगी और सारा चीज उन्हें फेंकना ही पड़ेगा। So this is how God has made you. तो इसी तरीके से परमेश्वर ने आपको बनाया है। And the world has the guts to say you don't look beautiful. तो दुनिया में इतना ताकत है कि वो बोल सके कि आप सुंदर नहीं दिख रहे हो। You listen to the world because you have not listened to Jesus Christ. आप दुनिया की बातों को सुनते हो क्योंकि आपने यीशु की बातों को नहीं सुना। Workmanship. क्योंकि हम आपसे कहते हैं कि तुम परमेश्वर की रचना हो। The original word for workmanship is poema. और जो आदि में जो ये जो शब्द था, ये वर्कमैनशिप, उसके लिए था Greek पोएमा। में poema. और That यूनानी is भाषा written में as पोएमा। workmanship in English. और अंग्रेजी में ये वर्कमैनशिप लिखा है, हिंदी में रचना लिखी है। Poema is the word from which the word poem comes. और पोएमा जो शब्द जो यूनानी भाषा में थी, उसी से पोएम जो Some अंग्रेजी people, भाषा है। this is what we believe about you. This is what we believe about you. और यही हम विश्वास करते हैं आपके विषय में। When people come here, they come here with all baggages. और जब लोग यहाँ पर आते हैं, वो कई सारे बोझ उठाकर दुनिया से आते हैं। Gradually we change you. लेकिन धीरे धीरे वो बदलता है। We change you. हम उसे बदलते हैं। And we make you change yourself. और हम ये आपकी मदद करते हैं कि आप अपने आप को बदल सके। We believe that you are a masterpiece created by God. यही विश्वास करते हैं कि आपको उत्तमता से परमेश्वर ने बनाया है। Your masterpiece is created by God for a special purpose. और इस उत्तमता से बनाया हुआ इसे परमेश्वर ने बनाया है किसी एक उद्देश्य को लेकर। See, masterpieces are not created to be kept on the roads. और ऐसे उत्तमता से कुछ चीजें हम बनाते हैं तो उसे ऐसे रास्ते पे छोड़ने के लिए नहीं है। Or kept on in the front of the dukans, like, you know, like this. और No, दुकान no, के no. सामने It मान is लो kept ऐसे in museums, उसे म्यूजियम में हम संभाल कर kept रखते in हैं houses. और बड़े घरों में रखते These are हैं। masterpieces. क्योंकि ये मास्टरपीस है। Please उत्तम understand, की it रचना, has a उत्तमता की purpose. रचना, उसका एक उद्देश्य है। Every masterpiece has a value. और हर एक उत्तमता से बनाया गया रचना उसका एक मूल्य होता है। Masterpieces are extremely valuable. और ये बहुत ही कीमती है। So God made you as a masterpiece, as a very valuable person in this world. तो परमेश्वर ने जब आपको रचा, इस दुनिया में बहुत ही कीमती व्यक्ति के तौर पर बनाया है और यहाँ पर रखा है। Let us continue to read Psalm 139, भजन संहिता 139 को हम पढ़ते हैं। verse 17. Nothing can be dumped on you unless you believe on that. कोई भी चीज आप पर नहीं डाला जा सकता जब तक कि आप स्वयं वो विश्वास ना करें। Unless you believe a lie, they cannot sell you a lie. जब तक आप उस झूठ को खरीद ना लो, तब तक वो आपको बेच नहीं सकते उस झूठ को। Today many of us, we think everybody forgot me. आज कई लोग ये सोचते हैं कि सब लोग मुझे भूल गए हैं। And some people get confused, you know. Sir, I don't know what to do with my life. और कुछ लोग ऐसे गड़बड़ी में रहते हैं कि सर मैं नहीं जानता कि मैं अपने जीवन से क्या करूं। Now we have a different answer for इसका such people. अलग एक जवाब हमारे पास है ऐसे लोगों के लिए। If you are suffering with confusion, you need to listen to this. अगर आप ऐसी गड़बड़ी में पीड़ा सह रहे हो तो आपको ये बातें सुननी है। That is why you need to join House of Prayer. और इसी कारण आपको हाउस ऑफ प्रेयर में जुड़ना Tell your है। neighbor, अपने join पड़ोसी House से of कहो Prayer. हाउस ऑफ प्रेयर के साथ जुड़े रहो। Join House of Prayer. हाउस ऑफ प्रेयर के साथ जुड़े रहो। Why you should join House of Prayer? क्यों आपको हाउस ऑफ प्रेयर में जुड़ना So है? that you will have no confusion. ताकि आपके जीवन में ऐसी You कोई will गड़बड़ी have- ना रहे। No confusion. कोई गड़बड़ी ना रहे। Confusion is a mark of the world, गड़बड़ी जो है ये दुनिया की निशानी है, not a mark of me. मेरी निशानी नहीं है, Tell मेरा your चिन्ह नहीं neighbor, है। not a mark of me. अपने पड़ोसी से कहो ये I am मेरी not चिन्ह नहीं है, confused. मैं कोई गड़बड़ी में नहीं Tell your हूँ। neighbor, I am not अपने confused. पड़ोसी से कहो कि मैं कोई गड़बड़ी में नहीं I will हूँ, never be confused. मैं कभी भी कोई गड़बड़ी में नहीं रहता। Let's turn to verse 17. 17वें वचन को Can देखेंगे, we read? हम पढ़ेंगे। How precious also are your thoughts to me, O God. How great is the sum of them. If I should count them, if I should count them, they would be more in number than the sand.
When I am awake, I am still with you. Listen to this. You feel people have forgotten you? क्या आपको लगता है कि लोगों ने आपको भूल दिया है? How many of you feel people कितनों have को लगता है कि लोग भूल चुके हैं आपके विषय में? I'll tell you one thing. मैं आपसे एक बात कहूं, It's good that they forgot you. और ये अच्छी बात है कि वो आपको भूल गए. Let people forget you. लोग आपको भूल जाए, यही अच्छा है. They are not of you. They are not your people. वो आपके लोग नहीं हैं, They will forget you. वो आपको भूलेंगे ही. It's good that they forgot you so soon. ये बहुत अच्छा है कि इतना जल्दी वो आपको भूल गए. One day one girl came and wept very bitterly to me. और एक दिन एक लड़की आई और बहुत वो रो रही थी. He said, my boyfriend left me. और उसने कहा कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसने मुझे छोड़ दिया. I said, good. मैंने कहा अच्छा हो गया, Good. अच्छा हो गया. She was very angry. वो बहुत गुस्से में आ गए. Sir, how are you talking? आप ऐसे कैसे कह सकते हो? Anyway, he will leave you. और क्या वो ऐसे भी तुम्हें छोड़ देने वाला. After marriage, he will take all your money and leave. और आपके तुम्हारी शादी के बाद सारा पैसा भी ले जाता. Huh? Good, he left you now. अच्छा हो गया कि अभी वो छोड़ के चला गया. Tell your neighbor, अपने God पड़ोसी से bless कहो. you. God has already blessed you. परमेश्वर ने आपको पहले God से has आशीष already दे दी है. If people left you, अगर लोगों Praise ने आपको God. छोड़ा है, परमेश्वर की स्तुति Praise हो. God, they left. परमेश्वर की स्तुति हो कि वो छोड़ के चले many गए. people left me. बहुत से लोग ने मुझे छोड़ They दिया. took my money also and left वो me. पैसे भी लेके चले गए. I really thank God. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद Praise मानता हूँ. God. परमेश्वर का You धन्यवाद. cannot be more happy than me. आप इससे ज्यादा खुश I नहीं am हो so सकते. excited that they left me. मैं बहुत उत्साहित हूँ कि वो मुझे छोड़ के चले गए. Today I am better off. आप आज I मेरी am परिस्थिति better off बेहतर है. without them. उनके बिना मेरी परिस्थिति आज बेहतर है. I don't invite them also. मैं उनको न्योता भी नहीं देता. I say, hi, praise the Lord, we'll meet in heaven. मैं कहता हाँ प्रेज लॉर्ड, हम स्वर्ग में मुलाकात करेंगे. Yeah, I will meet them there. हाँ, They are स्वर्ग- believers, no. वो विश्वासी है तो आ स्वर्ग में जाएगा मिलेंगे. ऊपर. I can't stop it. मैं उसे रोक नहीं ऐसा भी सकता. कुछ रो दो के वो ऊपर आ जाएगा. Okay. उधर मिलेंगे ना, इधर नहीं मिलेगा. हाँ? So don't worry if people leave you. तो आप चिंता ना करें अगर लोग आपको छोड़ देते. Now I will give you a good news. आज एक सुसमाचार मैं आपको There is सुनाऊंगा. someone who is only thinking of you. कोई एक है जो केवल आपके बारे में How सोच sweet. रहा Tell है. your neighbor, there is someone who is only thinking of you. अपने पड़ोसी से कहो कोई तो ऐसा है जो केवल आपके बारे में सोच रहा Only है. you, only you, पूरा दिन केवल आप, Only you. केवल आप ही, only you. केवल आप ही. Who is he? वो कौन है? He is your creator. वो आपका सृष्टि करता है. Look at this. देखिए Why you should join House of Prayer. क्यों आपको हाउस ऑफ प्रेयर जुड़ना We है. introduce this man to you. इस व्यक्ति को की पहचान This आपसे हम person कराते to हैं. you. We introduce this person to इस व्यक्ति की पहचान हम आपसे कराते you. हैं. See how precious your thoughts. देखो कितना बहुमूल्य है आपके How विचार. precious his तेरे thoughts. विचार कितना ही बहुमूल्य How है. great is his thoughts. और कितना महान आपके विचार है. From morning till night. सुबह से लेकर संध्या तक Many, many thoughts. कई सारे विचार, Huh? So many thoughts about you. कई सारे विचार आपके विषय. Why are you worried? क्यों आप चिंता कर He रहे is हो? only thinking of you. वो केवल आपके विषय सोच रहा है. Why not you smile क्यों ना आप and मुस्कुराए. tell you all your neighbors, hey, I am अपने very सारे पड़ोसी से special. कहो कि मेरे बारे में वो सोच रहा है. Huh? You can't even count the number of thoughts. और जितने विचार है उसे आप गिनती भी नहीं कर सकते. Huh? They are not बेकार thoughts. Huh? और कोई बेकार के विचार नहीं है वो. बेकार लोग के अंदर क्या होता है? बेकार thoughts होता है. ये पिता परमेश्वर है. आमीन. ये किसका thoughts कैसा होता है? Every thought is a 100 million plan. Every thought हर एक विचार is $1 billion plan. ये खरबों रुपए के ऐसे विचार है. We really don't know हम सचमुच नहीं जानते what belongs to us. जो हमारा है. If you capitalize one thought, you'll become a billionaire. अगर आप एक ही विचार को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो तो आप एक खरबपति बन जाओगे. It's true. I'm not joking. It's so true. It's so big and huge. One thought of God about you. और ये एक विचार इतने बहुमूल्य है जो परमेश्वर का आपके प्रति है. This is what we teach here.
यही हम यहाँ पर We सिखाते teach हैं। here, we teach you the plans of God, the thoughts of God. परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, परमेश्वर की जो विचार है, उसी को हम आपको सिखाते हैं। With this plan, you can defeat everything which happened to you in the past. और यही योजना से जो बातें आपके जीवन में भूतकाल में घट चुकी है, उसे आप हरा सकते हो। Today, many people, they have lot of past. There is a past. History they carry. and आज come. बहुत सारे लोगों के जीवन में इतना अधिक भूतकाल में उनके जीवन में घट चुका है, जिसे वो अपने जीवन में लिए चलते हैं। Sometimes they say, sir, my past is haunting me. और कई लोग ऐसे कहते हैं कि मेरा जो भूतकाल है वो मुझे डरा रहा है। If your past is haunting you, you should be in house of prayer. अगर आपका भूतकाल आपको डरा रहा है तो आपको हाउस ऑफ प्रेयर में होना जरूरी है। Because connecting with Jesus Christ, He will take care of your past. क्योंकि जब आप यीशु मसीह के संपर्क में आते हो तो वो आपका भूतकाल को संभाल लेता है। He will give you wisdom and strength to overcome it. वो आपको ज्ञान भी देगा और ताकत भी देगा ताकि आप उस पर विजयी हो सके, So that you can be made into a very happy and successful people in house of prayer. ताकि आप बहुत ही खुश और उन्नति से भरे हुए लोग बने हाउस ऑफ प्रेयर। You can become a blessed and satisfied man. आप woman एक in this आशीषित place. और तृप्त व्यक्ति बन सकते हो यहाँ पर इस जगह पर। So we welcome your friendship. तो हम आपकी मित्रता को स्वागत करते हैं। We want you to be friends of house of prayer. हम चाहते हैं कि आप हाउस ऑफ प्रेयर के मित्र बने। We want you to be guests of house of prayer. हम चाहते हैं कि आप हाउस ऑफ प्रेयर के मेहमान बने। We want you to participate in house of हम चाहते हैं कि आप हाउस ऑफ प्रेयर में भाग हो। prayer. We want you to support the house of हम prayer. चाहते हैं कि आप हाउस ऑफ प्रेयर को सपोर्ट करें। More than anything, we want you to be here every Sunday morning and learn some real important stuff of your life and go. किसी भी चीज से बढ़कर हम चाहते हैं कि दर रविवार हम यहाँ पर आए और अपने जीवन के विषय कई बड़ी हकीकत को आप जानकर सीख कर जाए। And in house of prayer, और हाउस ऑफ प्रेयर में anybody can do. If you want to serve God, you can serve God. अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो कोई भी ये चीज कर सकता है। If you love God, you are qualified. अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो ये आपके लिए If क्वालिफिकेशन you काफी love है। God, you can sing in the worship team. अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप यहाँ पर आकर गा सकते हो। There is no distinction between a man and a woman. मैं Woman आपसे is कहता हूँ more कि स्त्री strong और than पुरुष में man. कोई अंतर नहीं है। Woman is not a weaker vessel. और ऐसा नहीं है कि स्त्री कोई वो कमजोर पात्र है। Some people say in the Bible it is said woman is a weaker vessel. कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल में ही लिखा है कि स्त्री जो है बाइबल में ऐसा वो लिखा ही नहीं है woman एक weaker vessel. कमजोर पात्र है। बाइबल में ऐसे कोई वचन लिखा ही नहीं। बाइबल में ऐसा लिखा नहीं. Woman is not a weaker vessel. In religion they teach, they treat woman as unclean and weak. हर धर्म में स्त्री को अशुद्ध मानते हैं और कमजोर मानते हैं। In Christianity they term woman as unfit for leadership. और ईसाई धर्म में भी वो स्त्री को वो मानते हैं कि ये तैयार नहीं है, ये लायक नहीं है कि कोई अगुवा बन सके। In kingdom of God there is no male, no female. लेकिन परमेश्वर के राज्य में कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं। In house of prayer there is no male, there is no female. हाउस ऑफ प्रेयर में कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं। Okay? So everybody can do everything in the house of prayer. हाउस ऑफ प्रेयर में हर एक व्यक्ति हर एक काम कर सकता है। I want every one of you to participate in everything else. और मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक में भागी हो। Okay? What are the foundations of the house of हाउस ऑफ प्रेयर की नींव किस पर बनी हुई है? See, foundations are very essential for health and for growth. नींव जो है ये बहुत जरूरी है उसके सेहत के लिए और उसकी बढ़ोतरी के लिए भी। Listen to this. When there is ध्यान no health, there will be no growth. जब वहां पर कोई अच्छी सेहत नहीं होगी तो उसकी बढ़ोतरी भी नहीं होगी। Everybody wants growth, growth, सब चाहते growth. हैं कि वो बढ़ते जाए। No, health will automatically grow. जो सेहतमंद बनेगा वही बढ़ते जाएगा। So you should be healthy to grow. आप सेहतमंद बनना है ताकि आप बढ़ सके। If you really want to grow, you should become healthy. आपको सचमुच सेहत आपको बढ़ना है Only तो आपको healthy सेहतमंद people will बनना है। grow. केवल सेहतमंद लोग ही बढ़ सकते हैं। Weak people will not grow. कमजोर लोग बढ़ नहीं सकते। So foundations are essential for health and growth. तो नींव बहुत जरूरी है ऐसे सेहत और बढ़ोतरी। When God created this earth, He made foundation, then He created the earth. जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी का सृष्टि की तो पहले नींव बनाया फिर सृष्टि की। Proverbs 3:19. नीति वचन 3:19। The Lord by wisdom founded the earth, by understanding He established the heavens.
He made foundations for this earth. और परमेश्वर ने इस पृथ्वी के लिए एक नींव डाली। He was not just creating the earth. He first made foundation, then he created the ऐसे earth. ही कोई सृष्टि नहीं की इस पृथ्वी की, पहले नींव डाली फिर बनाई। So we need to know, to have a very good growth, we need a good health, good foundation. तो हमें समझना है कि एक अच्छी तरीके से बढ़ने के लिए पहले नींव अच्छा बनना चाहिए। So there are 4 foundations we have for the house of prayer. हाउस ऑफ प्रेयर के ऐसे 4 नींव है जिस पर हम मानते हैं। How many foundations? कितने How many नींव हम बात foundations? कर रहे हैं हाउस ऑफ 4 प्रेयर में? foundations. 4 4 नींव things है। of this foundation. First is the word of God. पहले परमेश्वर का वचन आता है। We teach the word of God. हम परमेश्वर का वचन सिखाते हैं We also teach you to follow the word of और God. हम ये भी सिखाते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर के वचन को माना जाए। We make the Bible a very interesting book. हम बाइबल को बहुत ही रुचात्मक एक किताब बनाते हैं। Bible is not a dull, boring book. बाइबल कोई ऐसे बोरिंग सा किताब नहीं है। Bible is the most interesting book. सबसे अधिक रुचि से भरा हुआ एक किताब ये बाइबल है। Okay, Bible you can understand. Everybody can understand. हर एक व्यक्ति इस बाइबल को समझ सकता है। When I was in the 6th standard, I almost covered the entire Bible. जब मैं 6वीं कक्षा में था मैंने पूरी बाइबल को पढ़ लिया था। When I was in the 6th standard, my father bought me a Bible, Tamil Bible. जब मैं 6वीं में था मेरे पिता ने मेरे लिए एक तमिल बाइबल लेकर आए। I started to read from Genesis. I read there till Revelation. उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मैंने पढ़ लिया। Because Bible is such an easy read. क्योंकि बाइबल जो है वो आसानी से पढ़ने वाला एक किताब है। Today many people, they want an easy read. आज कई सारे लोग ऐसे किताब पढ़ना पसंद करते हैं जो And the- पढ़ने में आसान लगे। And the majority of the Bible is stories. अधिकतर बाइबल में जो बातें लिखी गई है वो कहानी के रूप में लिखी गई है। It is stories. वो कहानियां हैं। It's very beautiful to read. वो सुंदर है पढ़ने के लिए। Everything is a story form. हर एक चीज कहानी के रूप में लिखा गया है। That's why we have children's Bible. और इसीलिए हमारे पास बच्चों के लिए भी विशेष बाइबल है। How children's Bible? बच्चों के लिए Hey, विशेष क्या children है? can understand Bible. बच्चे भी बाइबल को समझ सकते हैं। Anyone can कोई understand भी the पढ़ Bible. सकता है। It's so easy ये to read. आसान है पढ़ने के लिए। Anybody, you buy a Bible in your mother tongue and you begin to read. आपके मातृभाषा में आप बाइबल खरीद सकते हो और आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। You need a Bible. So we help you to, read and understand the Bible in a very easy way. हम आपकी मदद करते हैं ताकि आप बाइबल को आसानी से पढ़ सके और समझ सके। We teach from the Bible. हम बाइबल से ही सिखाते हैं। You know why we teach from the Bible? और क्या आप जानते हो क्यों हम बाइबल से Not सिखाते to हैं? pass Bible exams. ऐसे नहीं कि कोई बाइबल का एग्जाम आने वाला है उसे पास करना है। Not to compete Bible competition. और बाइबल के क्विज कंपटीशन में भाग लेने के लिए नहीं। We teach Bible so that you can win the life competition. हम बाइबल इसीलिए सिखाते हैं ताकि आप जीवन के इस परीक्षा में पास हो सके। Not learn the Bible so that you can win some examination. और कोई परीक्षा पास करने के लिए आपको बाइबल नहीं That सिखा is the रहे हैं। first foundation. ये पहली नींव है। That is the second foundation. ये दूसरा नींव आप समझे। The second foundation is fasting and prayer. दूसरा नींव जो है वो उपवास के साथ प्रार्थना करना है। Please इस understand. बात को समझे। Everybody prays, सारे लोग प्रार्थना करते हैं but no one gets a result. लेकिन कोई भी उसका उत्तर नहीं पा Are रहा you है। with me? क्या आप मेरे साथ हो? Everybody pray. Who doesn't pray? कौन प्रार्थना नहीं करता? सारे धर्म के लोग दुआ करते हैं। कितना दुआ सुनता है? कोई भी दुआ कोई भी नहीं सुनता है। No prayer will be answered. All Christians pray. किसी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। सारे ईसाई धर्म के लोग भी प्रार्थना करते No हैं prayer, no answer. लेकिन कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा। That's why you don't pray. और इसलिए आप प्रार्थना You नहीं don't करते। pray because there is no answer in for you. आप प्रार्थना नहीं कर रहे क्योंकि आपको कभी उत्तर ही नहीं मिला। That's why many people stop praying. और इसलिए बहुत से लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। Then some people wonder, God will answer only if He wants to answer. और फिर लोग सोचने लगते हैं कि परमेश्वर तभी उत्तर देता है जब वो चाहे कि वो उत्तर दे। So they try to beg God, Father, please. Have you seen the word? Some people say, please, please, and क्या pray. आपने सुना है कई लोग ऐसे भीख मांगते हैं, कृपया करके प्रभु Please answer this. prayer. दया करो और उत्तर दो। How can you use the word please in your prayer? आप प्रार्थना में ऐसे कृपा करो, ये दया करो, ये क्या कैसे You इस्तेमाल- don't know who God is. आप जानते ही You don't know what prayer is. आप जानते नहीं कि That's why प्रार्थना you क्या are है। trying to say, please, God. If I say please also, He will give me. और इसलिए आप रो रो कर ऐसे प्रार्थना कर रहे हो, प्लीज कर रहे हो, आप सोचते हो कि वो दे देगा। Some people are fasting and praying so that God will answer your prayer. और कुछ लोग उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं ये सोच के कि तो ही परमेश्वर मेरा But- उत्तर देगा। Some people are crying and praying. कुछ लोग रोकर प्रार्थना कर रहे हैं।
बहुत से लोग नहीं जानते कि कब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता Today है। I will tell you when God will listen. आज मैं आपको बताऊंगा कि कब परमेश्वर आपकी प्रार्थना Today I को will tell सुनेगा। you how every prayer of yours will be answered. आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हर एक प्रार्थना जो आप करते हैं उसका उत्तर आपको मिलेगा। The only prayer which can ever be answered is to Almighty God in the name of Jesus. और वो प्रार्थना जिसका उत्तर कभी भी मिल सकता है वो यही प्रार्थना है जो पिता परमेश्वर से की जाती हो, यीशु मसीह के नाम से की जा The रही हो। second condition for this prayer is और you need to दूसरा जो- fast and pray. दूसरा जो नियम है जो इस प्रार्थना का है वो है उपवास के साथ आप प्रार्थना करें। Because you don't fast and pray, your prayers are not answered. क्योंकि आप उपवास के साथ प्रार्थना नहीं करते, आपके प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता। Now, there are two more foundations, दो और नींव है, and that I will teach you next week. अगले सप्ताह मैं इस विषय बात करूंगा। And I also will teach you what we are believing in the house of prayer. और मैं ये भी सिखाऊंगा कि हम हाउस ऑफ प्रेयर में क्या विश्वास करते हैं। Okay, in the next consecutive weeks, I'm going to teach extensively about the doctrines we teach here. अगले सप्ताह में मैं जो सिद्धांत जो हम यहाँ पर सिखाते हैं उन विषय में आपको सिखाऊंगा। Hallelujah.